Okay, good morning everyone and welcome back to Data Structures theory session. In previous session we were talking about binary trees. We have looked at few basic definitions, few more definitions of binary tree like siblings, levels, strictly binary tree, complete binary tree, fully binary tree and all. After that we moved towards the binary tree traversal process. We looked at depth first traversal algorithms and breadth first traversal algorithms. Depth first, पहले depth में जाना है. We have three options: pre-order, in-order, post-order. Breadth first में हमारे पास एक option है, level order. We have seen in pre and post-order traversals in detail, and this is what you have to practice it now. Physical students are already doing this. Online students, go for in-order, pre-order and post-order traversal for given tree, which you can see on your screen right now. Write down pre-order, in-order and post-order traversal for a given tree. Look what am I doing? I am traversing, and when I write 1, I am going to print it. That gives me pre-order. Again you traverse, and when you write 2, then you print it. It becomes in order. Okay, so these are gonna be pre-order, in-order and post-order traversals. सही है या गलत है कोई मैटर नहीं करता, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे.
voice is not audible. I just want to confirm, Miraj, is my voice clear now? I think there is a network problem. Okay, yeah, let's continue then. So, doesn't matter whether this example was correct or not, you have to practice more. This was just a quick revision kind of thing to bring you on the track, because based on these understanding, based on these in order, pre-order, post-order understanding, you are going to complete the next topic, construction of a tree from a given traversal. ट्री दिया है तो ट्रावर्स करते हो, ओके। अगर ट्रावर्सल दिया है तो ट्री बनाना है, द रिवर्स प्रोसेस। You always need minimum 2 traversals to construct a tree. अगर सिर्फ एक ट्रावर्सल सीक्वेंस आपको दिया गया है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे इनमें से कौन सा रूट बनेगा, कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट, कैसे डिसाइड करोगे? Look, whenever you think about, let's say, in order, then the sequence is something like left, root, right. Now, अगर मैं आपको ये सीक्वेंस देता हूं DB EA FC, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें से इतना लेफ्ट, इतना राइट और ये रूट है, या फिर इतना लेफ्ट, इतना राइट और ये रूट है? हाउ डू यू डिसाइड? ये भी हो सकता है कि सब कुछ लेफ्ट में, ये रूट, राइट कुछ है ही नहीं, कैन बी। तो अगर सिर्फ एक ट्रावर्सल आपको दिया गया है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। बट फ्रॉम द सेम ट्री, from the same tree, if you have at least 2 traversals, तो आप ये तो डिसाइड कर सकते हो कि ए आपका रूट जो है वो प्री में हमेशा पहले रहेगा और पोस्ट में हमेशा वो लास्ट में ही रहेगा। आपका मेन रूट प्री ऑर्डर में सबसे पहले, पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट, ये पक्का है। अगर आपको प्री या पोस्ट से रूट मिल जाता है तो आप इन ऑर्डर में जाके बोल सकते हो कि हाँ, दिस इज वेयर आई हैव 2 पार्टीशंस, एक लेफ्ट जाएगा, दूसरा राइट जाएगा। अगर इन ऑर्डर से आपको दोनों पार्टीशन मिलते हैं तो वही 2 पार्टीशन को आप प्री ऑर्डर में ढूंढो या तो फिर पोस्ट ऑर्डर में ढूंढो, आपको वहां पे भी पार्टीशन मिल जाएंगे। All those partitions are nothing but subtrees. Subtree will follow the same sequence, in order, pre-order, post-order. तो जो आइडिया आपने अभी लगाया वही आइडिया वो पार्टीशन पे भी लगा सकते हो। सो दिस बिकम्स इजी अगर आपके पास एक इन है
दूसरा प्री या पोस्ट कोई भी हो, इन होना चाहिए। प्री और पोस्ट में से कोई भी एक दूसरा आ गया, देन इट बिकम्स वेरी मच इजी। With that understanding, let's think about this part. Let us try to create tree for given, in order and pre-order traversal. कैसे ड्रॉ करोगे, लिखना है आपको फिर से। From pre-order traversal you can find your root। तो आपको अपने ट्री का रूट मिल गया, और उस रूट को अगर आप इन ऑर्डर में ढूंढते हो तो आपको लेफ्ट और राइट पार्टीशन मिलते हैं। लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में FC। ये है आपका इन ऑर्डर। वही पार्टीशन अगर आप प्री में ढूंढने जाते हो तो कहां पे बनता है, तो प्री यहां पे क्या बनेगा, फिर से लिखो, लेकिन अब आप सिर्फ उतना ही पार्टीशन लिखोगे। एंड नाउ यू फोकस ऑन दैट पार्टीशन ओनली। फॉलो द सेम प्रोसेस। प्री से आपको रूट मिलता है, और उसी रूट को आप इनमें ढूंढने जाओ तो आपको पार्टीशन मिलते हैं। अब अगर वो सिंगल नोड है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मुझे उसका प्री और इन चेक करने की जरूरत नहीं। सेम वे फोकस ऑन द सेकंड वन। प्री से आपको रूट मिलेगा तो वो रूट बन गया मेरा, और उसको अगर मैं इनके अंदर ढूंढता हूं तो मुझे पार्टीशन मिलेंगे। सी के लेफ्ट में है एफ, ओके, सी के लेफ्ट में एफ जाएगा। लेफ्ट एंड राइट you have to maintain, otherwise your answer will be wrong. So final tree आपको क्या मिला, this is your final tree for given orders. Draw the entire process. Sorry. Go for the second one. Now you have been given in order and post order.
Yeah, so let's okay. Yeah, so let's do it. I don't know what is the final answer. Let me do it and you compare the entire process. So the final one, from post order I can have my first root. And if I find that root in order, then I have left and right. अगर वो लेफ्ट राइट मिल जाता है तो मैं पोस्ट ऑर्डर में उसी पार्टीशन को ढूंढ सकता हूं. And those partitions can give me left and right root. Now when I go and search those roots to in order, I can again have left and right partitions. राइट में तो एक ही है, फिक्स हो गया. But those partitions, if I search it in post order, then it gives me again subtree root. अब वो पार्टीशन किसका था? 2 का. तो 2 के लेफ्ट में मुझे मिलेगा 4 और बाकी बचा 7. Now let us think about right child of 1. Okay? यहां पे फोकस करो. पोस्ट ऑर्डर गिव्स यू रूट, मिल गया. इन ऑर्डर गिव्स यू पार्टीशन. राइट में कुछ है ही नहीं, सब कुछ राइट में, लेफ्ट में. ओके. अगेन पोस्ट ऑर्डर गिव्स यू रूट. और 6 को जब इन ऑर्डर में देखोगे तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों मिलेंगे. Now this should be your final answer. अब एक ही जगह पे जब आप एरो बनाते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे. दैट्स व्हाई आई टोल्ड you write all the steps. You have to write all those steps. बाकी ये आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए. Look, you have chosen 2. That's correct. 2. You have 7, 4 and 5. Now this is your in order. इन लिख लिया. तो यही पार्टीशन जो है वो यहाँ पे बनाओ. तो 7, 4 और 5 पोस्ट ऑर्डर लिखोगे. 7, 4 and 5. यहाँ पे क्या पार्टीशन बनेंगे? 7, 4 and 5. Now how about this one? 3 is your root and 3 is your partition. Only left partition. So 8, 6, 9 is okay.
इन 869 पोस्ट क्या रहेगा 896 right. So hopefully this is your your answer. अगर ये नहीं है then फिर से प्रैक्टिस करो. One more, do it. Let me keep first example on the screen. So अगर किसी को डाउट है वो ये रेफर कर सकता है. Okay.
Look, still some of you are confused in this process. Look, see here. Pre-order will give you root. तो वो रूट बना दिया. उसी रूट को जब आप इन ऑर्डर में ढूंढते हो तो आपको लेफ्ट राइट मिलता है. अब लेफ्ट में जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस प्री में बदलेगा, लेकिन वही 3 वैल्यू आप प्री ऑर्डर में कहां पे खत्म करते हो वो ढूंढो. ओके. DBE उसी 3 वैल्यूज को मैं प्री ऑर्डर में ढूंढूंगा. BDE सीक्वेंस भले ही बदलता है, लेकिन वही 3 वैल्यू प्री ऑर्डर में कहां पार्टीशन क्रिएट करती है वो ढूंढो. सो नाउ यू हैव दोज 2 सब प्रॉब्लम्स. फिर से इन प्री आपके डिसाइड हो गए. DBE आपने यहां पे लाया और BDE भी आपने यहां पे लाया. देन दिस बिकम्स योर सब प्रॉब्लम. छोटा बन गया. सेम प्रोसेस रिपीट. That's why I'm saying you write all these sequences again and again. Don't go for direct solution. प्री ऑर्डर में क्या क्या आना चाहिए वो आपको इन ऑर्डर से मिलता है. सो रूट लेफ्ट इन ऑर्डर से आपको पता चलेगा कि प्री ऑर्डर में क्या क्या लेना है. क्या लेना है? डी, बी और ई को लेना है. अब वो सीक्वेंस कोई भी हो, लेकिन यही 3 वैल्यू आप प्री ऑर्डर में लोगे नेक्स्ट स्टेप में. सो लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन, काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर दिस. Your pre-order will give you the root. When you find this root in order, आपको लेफ्ट और राइट पार्टीशन मिलते हैं. Write those partitions here. This is your left in order, and on the right side so that's your in order. अब यहां पे आपको प्री ऑर्डर कैसे मिलेगा? तो आप ये बोलोगे कि जो इन ऑर्डर में मिली है वैल्यूज, उन्हीं वैल्यूज को आप अपने प्री ऑर्डर में ढूंढो. वो कहां पे खत्म होती है? सो ओके, 30, 15 भी लेफ्ट में है, 40 भी लेफ्ट में है, 35 भी लेफ्ट में है, 45 भी लेफ्ट में है, लेकिन ये 70 जो है वो राइट में गया. सो यू फाउंड दैट पार्टीशन हियर. जैसे ही वो पार्टीशन मिल जाए लिखो. अब पहले बड़ा प्रॉब्लम था, अब छोटे छोटे 2 प्रॉब्लम है. रिपीट द सेम प्रोसेस. प्री ऑर्डर विल गिव यू रूट. इन ऑर्डर में रूट को देखो तो आपको लेफ्ट और राइट मिल जाएंगे. Write those sequences again and find out root and partitions. अगर एग्जाम में पूछूं तो इतना बड़ा तो कम से कम पूछूंगा. यस, स्टेप नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखा मतलब आपने आगे पीछे देख लिया. आगे वाले स्टूडेंट से आंसर लिया, पीछे वाले स्टूडेंट से आंसर लिया, डायरेक्ट. यू डोंट नो द स्टेप्स.
अगर डायरेक्ट आंसर लिखा है और गलत है तो 0 मार्क्स, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप गए हो, बीच में कहीं गलती की, पार्शियल मार्क्स. You know the process at least, so partial marks. डायरेक्ट आंसर लिखते हो और गलत है तो सही है तो भी नहीं, बिकॉज देन देर इज अ चांसेस ऑफ यूएफएम. आपने चीटिंग की, कहीं से देख लिया, आपको प्रोसेस नहीं पता, मग अप कर लिया, ये तो पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी. सो ऑलवेज गो फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. शो दिस प्रोसेस, मार्क्स इसी के हैं, राइट? ओके, let's go for the next topic, which is binary search tree. Binary tree क्या होता है? What is binary tree? Maximum 2 children, minimum 0, maybe 1, maximum 2. That's it. That's binary tree. अब उसमें सर्च ऐड कर दिया. सर्च करना है तो आपको क्या चाहिए? अगर कुछ वैल्यू सर्च करने जाते हो तो आप प्रोसेस क्या करते हो? ट्रैवर्स. ओके, देन एक वैल्यू दे दिया, यू सर्च दिस वैल्यू, आप क्या करोगे? ट्रैवल करोगे. then we compare that value with the existing value. When you compare, there are 3 possibilities. Either those two are equal, or the given value is smaller one, or the given value is larger one. In other words, आप ये बोल सकते हो कि existing value greater है या smaller है, but there is a relation, greater than and less than relation. So there are only 3 possibilities: equal, less and greater. What if you can take some decision? क्योंकि अगर हम ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल पाथ है टू ट्रैवर्स. लीनियर तो है ही नहीं कि सिर्फ आगे बढ़ना. अगर लीनियर था तो देयर वाज ओनली वन पाथ, आप सिर्फ आगे बढ़ते थे. लेकिन इन ट्री यू हैव मल्टीपल पाथ्स. So what if you can decide whether I should go left or I should go right? अगर इक्वल मिलता है then we found that value. लेकिन अगर इक्वल नहीं है then I should take some decision. Should I go left or I should go right? If you can take those kind of decisions to search your value, then it will be helpful. And that's what binary search tree gives you. Binary search tree maintains data in such a way that all the lesser values will be on the left side, all the greater values will be on the right side at any point of time within the tree. Yes? We maintain it. पहले से हम वही मेंटेन करेंगे. So now you can say, okay, binary search process और binary search tree दोनों कुछ एक जैसे हैं. दोनों कुछ एक जैसे हैं. ऑन अ लीनियर एरे जब आपने बाइनरी सर्च अप्लाई किया तो प्री रिक्विजिट था कि आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए. अगर वो सॉर्टेड है तो आप क्या करते थे? डायरेक्टली चेक द मिडिल वैल्यू. इफ इट इज इक्वल वी फाउंड इट, इफ इट इज नॉट इक्वल ईदर वी गो लेफ्ट और वी गो राइट. बेनिफिट क्या था? आधा एरे निग्लेक्ट, रिड्यूस द कंपेरिजन्स.
The same benefit you will have here. If you are maintaining your data in a tree, because some relations are there, parent and child, but still if you maintain your data such a way that lesser values on the left, greater value on the right, अगर आपको कुछ सर्च करना है, once you take a decision you are going for left, एक बार आपने ये डिसीजन लिया कि आप लेफ्ट जा रहे हो, तो आपने राइट वाला पूरा पार्ट छोड़ दिया. सो जब आप ट्री को ट्रावर्स करोगे तो पूरा ट्री ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं है. यू ट्रावर्स योर ट्री बेस्ड ऑन अ कंडीशन, and that condition is possible only if you maintain your data such a way that lesser on the left, greater on the right. What am I saying? Maintain मतलब जब भी आप डेटा डालते हो ट्री के अंदर तो वो आपको मेंटेन करना है एज अ डेवलपर. हम कोड ही कुछ ऐसा लिखेंगे कि छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड जानी चाहिए, बड़ी वैल्यू राइट साइड जानी चाहिए. जब भी मैं नई वैल्यू को इंसर्ट करता हूं तो वो कहां पे इंसर्ट होगी वो प्लेस पहले मैं ढूंढूंगा. आई एम गोइंग टू फाइंड दैट प्लेस फर्स्ट बेस्ड ऑन ऑल दीज कंपेरिजन्स कि जो नई वैल्यू मुझे डालनी है, इफ इट इज 5 तो वो 5 कहां जाना चाहिए. रूट इज 10 तो लेफ्ट में. अगर लेफ्ट में भी ऑलरेडी कोई एक वैल्यू है 8 तो 5 कहां जाना चाहिए, स्टिल लेफ्ट. लेफ्ट में जाके वहां पे और कोई वैल्यू है लेट्स से 2 तो 5 कहां जाना चाहिए, राइट. सो आई एम गोइंग टू फाइंड दैट प्लेस वेयर शुड आई पुट अ न्यू वैल्यू. जैसे ही जगह मिलेगी आप वहां पे नया नोड क्रिएट करोगे, लिंक मैनेज करोगे, ओवर. But that's what the insert process is. We will see that later. But what is binary search tree? A binary tree which confirms two properties. कौन सी प्रॉपर्टी है? Each value in the tree exists at most once. क्योंकि दो इक्वल वैल्यू को अगर आप डालने जाते हो देन हाउ विल यू टेक डिसीजन लेफ्ट और राइट. 10 ऑलरेडी है आपके ट्री के अंदर और दूसरा 10 आपको डालना है, तो कैसे डिसाइड करोगे कहां डालो, लेफ्ट और राइट. इक्वल है तो लेफ्ट भी नहीं जा सकता, इक्वल है तो राइट भी नहीं जा सकता, और उसी जगह पे डाल भी नहीं सकता, इट इज ऑलरेडी देयर. सो one thing is every key, every value must occur at once, and then you should be able to define greater and lesser comparisons or decisions, relations. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी वैल्यू दे दी कॉम्प्लेक्स वैल्यू जिसको आप ग्रेटर लेसर में रिलेट ही ना कर पाओ. Then also binary search tree is not possible. If it is numeric value, even if it is string or character, you can still define greater and lesser. तो वो होना चाहिए. And then there are sorting constraints. All data in a left subtree, किसी भी एक नोड को पकड़ लो तो वहां से आपको लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री मिलेगा. कोई भी एक नोड पकड़ लो तो उसका लेफ्ट सब ट्री और उसका राइट सब ट्री मिलेगा. इट इज अगेन गोइंग टू बी सम ट्री. कोई ट्री हो सकता है. सो ऑल द वैल्यूज इन दैट लेफ्ट सब ट्री मस्ट बी lesser than the current data, and all the values in right subtree must be greater. अब यहां पे एरो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब आप लेस देन ग्रेटर देन अगर लिखते हो तो x must be greater than this and x must be smaller
then all these values. And x should be in between. अगर x मिडिल में है, लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड बड़ी वैल्यू है, then it is sorted. So all the data in left subtree of n अगर आपका रूट मान लो, it should be less than, and all the data in right subtree must be greater than. If you want to take some example, then दस के लेफ्ट में जो भी वैल्यू है वो 10 से छोटी है, और उसके राइट में जो भी वैल्यू है वो उससे बड़ी है. इट मस्ट बी फॉलोड इन एंटायर ट्री, ना कि सिर्फ रूट से कंपेयर करो, बट इट मस्ट बी फॉलोड इन एंटायर ट्री. सो 5 के लेफ्ट में जो भी जाएगा वो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए. 5 के राइट में जो भी जाएगा वो 5 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए. एटीन इज नॉट पॉसिबल हियर. 5 से बड़ा तो है लेकिन वो 10 से छोटा नहीं है, तो आपका पहला ये पाथ ही गलत हो गया. 18 कैन नॉट बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 10, राइट? 8 इज ओके. तो 18 कहां जाएगा? 10 से बड़ा है तो राइट जाओ, 25 से छोटा है तो लेफ्ट आओ. तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग वैल्यू कौन सी है और आपने ट्री बनाना कहां से स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस ट्री फ्रॉम 10. अगर 18 से ही बनाना स्टार्ट करता तो ये ट्री कुछ अलग होता. 18 पहले भी हो सकता है, 25 बाद में भी हो सकता है. 18 पहले भी हो सकता है, 25 बाद में भी हो सकता है. That's what I'm saying. What is the sequence of your data that you receive? Sequence बदला, ट्री भी बदला. ओके, क्या सीक्वेंस था? पहले मैंने 10 लिया, उसके बाद 5, उसके बाद 25, उसके बाद 1, 8 और 8 18. दिस वॉज द सीक्वेंस ऑफ माई डेटा. अगर इस सीक्वेंस को मैं बदलता हूं तो मेरा ट्री भी बदल जाएगा. ओके, so you have to remember what is the sequence given to you. Sorry? No, this sequence will be given as an input. That's not the order. This is the input order. It is not ascending, descending or nothing. This is simply the input sequence. But when you traverse your binary search tree in order, it will be always ascending data. बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर ट्रैवर्स करोगे तो आपको असेंडिंग डेटा मिलेगा. असेंडिंग ऑर्डर में सारा डेटा मिलेगा. Okay, so that's what the binary search tree is. These are few more examples. If we start with 12, तो 12 के लेफ्ट में जो कुछ भी है वो सब कुछ 12 से छोटा होना चाहिए, और 12 के राइट में जो कुछ भी है वो बड़ा होना चाहिए. And that must be followed in sub trees also. अगर 8 के लेफ्ट में जाते हो then everything must be less than 8. And on the right side everything must be greater than 8. If it is number, easy to define lesser and greater. If it is string, still you can define lesser and greater. JO or JA, less. JO equal है तो third character JOH and JOS, S is greater. So it goes on the right side. So even you can compare names.
In short, your data must be comparable and you should be able to define lesser and greater relation. Yes? If it starts from JOH, और आपके रूट में क्या है JO सेम, आप कंपैरिजन करोगे A और H में, A स्मॉल वो जाएगा लेफ्ट में. अब लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में क्या है JOH आपके रूट में है, आपको कंपेयर करना है JOA. सो लेफ्ट जाओ, जैसे ही लेफ्ट में आता हूं JA है एंड आई वांट टू कंपेयर JO. जगह मिल गई तो एंटर इट, नहीं मिली तो ये कंपैरिजन जारी रहेगा. हाँ, एक एक कैरेक्टर कंपेयर करो. पहला कैरेक्टर कंपेयर करो, जे इक्वल है, दूसरा कैरेक्टर कंपेयर करो ओ इक्वल है, तीसरा कैरेक्टर कंपेयर करो, कहीं ना कहीं तो लेसर ग्रेटर मिल जाएगा. ए और एच, ए छोटा हुआ, ए अगर छोटा है तो लेफ्ट जाओ, बड़ा है तो राइट जाओ. इंसर्शन भी यही होगा, यही प्रोसेस रहेगा इंसर्ट करने के लिए. We will see few traversal operations and then we will see also delete, insert and delete operation on binary search tree. So next we will see how to traverse, how to print, how to search and then insert and delete. So that's all for today. Thank you everyone for being part of this session. Hope to see you in the next one where we will see few more operations on binary search tree.